Hello students, in the last class we were seeing the type of hybridization. Okay, today we will start with the type of hybridization, that is sp hybridization. The third type, we have seen the sp2 and sp3. Today we will see sp. Okay, and from the name itself it is clear that how many hybrid orbital is there? There is one s orbital from s subshell and one p orbital from p subshells. They get intermixed, that means intermixing means they get hybridized and forms how many hybrid orbital? क्योंकि यहाँ पे दो atomic orbital है तो they will be forming two equivalent orbitals and these orbitals have equal energy and shapes. Okay, that means you will be getting two sp hybrid orbitals, and where they will lie? They will be, for if this is the atom, they will be lying at the corner at an angle 180 degree, that means lying here and here. Okay, because only two is there. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी में आपने पढ़ा था दो है तो एंगल क्या होगा? लीनियर होगा, दैट मीन्स they have a linear geometry and they will be lying at an angle 180 degree to each other. Okay students, see, so now we will find, let's see the example. The example है first type, that is beryllium fluoride. The first type example of sp. तो sp है तो अंडरस्टूड है, कैसे पता चलेगा sp है? एग्जाम में मिल गया तो हाउ वी विल फाइंड आउट कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? तो सबसे पहले बेरिलियम का क्या लिखेंगे? द सराउंडिंग एटम्स जो है पहले लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला बता दिया था, सराउंडिंग एटम्स दैट इज 2, देन प्लस हाफ, देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बेरिलियम इट इज़ 2, ठीक है, और वैलेंसी भी कितना है? 2 है, दैट मीन्स हियर यू विल बी गेटिंग द आंसर 2 मीन्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स एस एंड पी इज द दिस हैज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल. अभी समझ में आ गया कि ये क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन. नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ टू डिस्क्राइब इट. ओके, तो सबसे पहले बेरिलियम है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेम वे कार्बन का जैसे लिख रहे थे यहाँ पे भी वही लिखेंगे. एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2:2. देन ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे बेरिलियम का. फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बनाएंगे, यहाँ पे दिस इज 2s2 एंड हियर p इज देयर बट इट इज एम्प्टी. ठीक है, तो अभी एक्साइटेड स्टेट, विल राइट द एक्साइटेड स्टेट बिकॉज वी नीड वन, क्योंकि s एंड p है तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल विल जम्प टू द एम्प्टी p ऑर्बिटल में जम्प कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp है तो s और p के बीच में क्या होगा? इंटर मिक्सिंग होगा, तो ये क्या होगा? हाइब्रिडाइज होंगे. हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या बनाएंगे? sp दोनों मिक्स हो गए. मिक्स होने के बाद 1s and 1p. How many? 2 sp hybrid orbital will be formed. Okay, here it has 50% s character and 50% p character. Okay, now this is about the beryllium. अभी क्या किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड के बारे में बता रहे हैं. तो फ्लोरीन मीन्स 2 फ्लोरीन एटम यू हैव टू लिंक इट, you have to make the bonds with 2 fluorine atom, this beryllium. So how it will form? बेरिलियम का जो है हमें पता है ऑलरेडी, I said they will be occupying the corners of a linear geometry. तो हो गया linear geometry. ये भी sp है, ये भी sp है, 180 डिग्री एंगल है. Now it is going to overlap with half filled. Remember half filled orbital, यहाँ पे only 1 electron is there, both has the 1 electron. तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फ्लोरीन का, ऑलरेडी हमने देखा था 1s2, 2s2, 2p, 5. Okay, this p subshell, here s is there, last valence electron s is there, and here in the p you will find one unpaired electron is there, and this one unpaired electron is going to overlap. This p is going to overlap with this sp hybrid orbital. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ BeF2. तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा विथ एन एंगल 180 डिग्री. ठीक है, हियर दे ओवरलैप एक्सियली, दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड. हियर द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन sp and p, sp of beryllium and p of fluorine. Okay, how many? 2.
And what type of bond? Sigma bond. That means it forms, after overlapping, it forms 2sp-p sigma bond. Okay. Now let's see the next one. This is about the beryllium fluoride. Now we'll see the next one, that is about ethyne. The formula is C2H2. C2 example, that is of the type formation of ethyne. Okay, so ethyne का आपको पहले से पता है कि फॉर्मूला क्या है, छोटी क्लास में आपने पढ़ लिया था। फॉर्मूला तो ये है, जब भी आप बनाएंगे डिस्क्राइब करेंगे तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का जो है सेम, कार्बन का जो है आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2 हो गया 6। नाउ ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ओनली फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1 and 2। नाउ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मीन्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेयर्ड विल जम्प टू, ये 2s2 है, ये 2p2 है। अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 2s से एम्प्टी p ऑर्बिटल में जाएंगे। दैट मीन्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल बी जंपिंग टू दिस ऑर्बिटल। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। हियर विल बी गेटिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है द हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तो दैट मीन्स 4 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन किसके होगा, इंटरमिक्सिंग किसका होगा, ओनली ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ओनली 1s एंड 1p। तो बाकी का क्या हुआ, दे रिमेन, दिस इज हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज हाउ मेनी, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, बट द 2 रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल दैट इज रिमेन unhybridized. Okay, now let's see the formation of ethyne. ethyne में वो कैसे फॉर्म हुआ था, ठीक, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे we know that the one carbon attached to the another carbon, ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स वन जरूर जो हो, एक जो है जरूर सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, सिग्मा बॉन्ड के बिना बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड हुआ तो 2 क्या है यहाँ पे, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड इज देयर, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो होगा पाई बॉन्ड। सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले वी विल डिस्क्राइब अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे एक कार्बन, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, देन द ओवरलैपिंग विद हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसे ओवरलैप किया, ठीक। अभी एक कार्बन के पास वी नो दैट द कार्बन हैज़, ईच कार्बन इज हैविंग 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट विल राइट इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, ठीक, वन ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन, इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज गोइंग टू ओवरलैप एक्सियली विथ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। ये हो गया फर्स्ट, इसके बारे में हमने बात कर लिया, सिग्मा बॉन्ड के इसका दोनों का sp जो है आपस में ओवरलैप कर दिया। नाउ अबाउट द हाइड्रोजन के बारे में बात करना है, ठीक। हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना है, दैट मीन्स हियर आल्सो, क्योंकि एक कार्बन के पास 2 है तो नेक्स्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन, इस कार्बन का एंड ये वाले कार्बन का, द sp हाइब्रिड ऑफ ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन इज गोइंग टू ओवरलैप विथ, हाइड्रोजन के पास क्या ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, स्पेरिकल शेप है, गोइंग टू ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एक्सियली एंड फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया फुल एक बॉन्ड। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द पाई बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। तो अभी पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बॉन्ड का जो है याद रखना, 2 p ऑर्बिटल्स है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, सो 2 पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, ओके। 1 पाई बॉन्ड ऐसे, p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड अनदर 2 है। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे है, एक बॉन्ड बना है, ठीक है, एक बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, एक तो ऊपर पाई बॉन्ड क्लाउड जो है कैसे बनेगा, अबव एंड बिलो द प्लेन होगा एक
ठीक है, एक तो अबव एंड बिलो द प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा, फ्रंट एंड बैक साइड होगा ऑफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियस का ऊपर और नीचे बनेगा और फ्रंट एंड बैक साइड बनेगा। तो यहाँ पे जो है 3D व्यू पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे बनाते हैं, एक जो है परपेंडिकुलर है और एक फ्रंट, दोनों जो है परपेंडिकुलर है लेकिन एक अबव एंड बिलो है और दूसरा फ्रंट एंड बैक साइड है। ठीक है, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है। द सेम वे हियर आल्सो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों कार्बन के पास जो है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इज गोइंग टू ओवरलैप। अगर ये px मानते हैं या तो a होगा px हमारा, ठीक, और ये होगा py एंड py। अभी यहाँ से यहाँ गया तो ओके, दिस इज वन ऑफ द पाई बॉन्ड, दिस इज द अनदर पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन में क्या हुआ, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वन ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अनदर कार्बन। तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों का इन्वॉल्व हो गया, तो और एक रह गया दोनों के लिए। तो नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज गोइंग टू ओवरलैप विथ हाइड्रोजन। हाउ, एक्सियली, दोनों एक्सियली ओवरलैप कर दिया तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, नाउ द लेफ्ट आउट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इज गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, तो क्यों पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, क्योंकि हियर द साइड वाइज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे तो एक्सियली देख रहे हैं क्योंकि हेड टू हेड देख रहे हैं, यहाँ पे भी हेड टू हेड देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। तो दो p बॉन्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ओके स्टूडेंट्स, this is about sp hybridization. Now next we will see the sp3d hybridization. Okay, here involve the d orbital, involvement of d orbital takes place. The first one, that is the fourth one, we'll start with sp3d. ठीक, नाम से ही क्लियर है, sp3d means how many orbitals are there total? 5 hybrid orbitals are there, 5 atomic orbitals are there, one s, 3p and 1d orbital get intermix and forms how many, 5 sp3d hybrid orbitals। ठीक है, तो मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, 5 sp3d hybrid orbitals। और 5 है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी में हमने पढ़ा था, 5 है तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ज्योमेट्री क्या होना चाहिए इनका, PCl5 का आपको याद होगा। 5 है तो 1 2 3 then 4 and 5, that means triangle and pyramidal। ठीक है, triangular pyramidal, that means these 5 sp3 hybrid orbital will be occupying the 5 corners of a triangular bipyramidal। Okay, and they have equivalent energy and shape. This is sp3d hybridization। Okay, now let's see the example। एग्जाम में जो है ज़्यादातर एग्जाम्पल आता है, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन फॉर PCl5, फॉर्मेशन ऑफ PCl5। अभी इसको जो है बताना है कैसे फॉर्म हुआ। ठीक, तो नाउ सेम x वैल्यू, x phosphorus surrounding atoms 5, then comes half, then the valence electron for phosphorus it is also 5। the valency वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे याद रखना वैलेंसी कितना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 5 से कंबाइन किया, दैट मीन्स दिस विल बी 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5। 5 मीन्स 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो दैट मीन्स दिस, अगर 5 आंसर आया मीन्स तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। 6 होगा तो sp3d2, 7 हुआ तो sp3d3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर वैल्यू ऐसे आया तो। ठीक, तो यहाँ पे sp3d है, आपको पता चल गया। नाउ लेट्स राइट द way to describe it। ठीक है, phosphorus 15 is the atomic number, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3। ठीक, 15 हो गया। अभी बैलेंस शेल जो है थर्ड लेवल में, थर्ड एनर्जी लेवल के बारे में बताना है। ठीक, बैलेंस शेल दैट मीन्स द ग्राउंड स्टेट, सेम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन केवल बताएंगे, 3s2 एंड 3p3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है एस में और पी में ईच हैज़ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे और एक इन द थर्ड एनर्जी लेवल हियर यू विल फाइंड द डी ऑर्बिटल इज देयर, क्योंकि डी का शुरुआत होता है 3d से,
तो सेकेंड लेवल में जो सेकेंड एनर्जी लेवल में 3D नहीं था, 2D was not there. So here what happens, the 3D comes, 3D has 5 orbitals, 3D subshells has 5 orbitals. तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है, no electron is there. Now excited state में क्या होगा, क्योंकि we know that D हमें चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है. तो यहाँ पे क्या होगा बता सकते हैं, क्योंकि पेयर्ड से ही जंपिंग होगा. पेयर्ड दैट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल विल जंप टू empty d ऑर्बिटल. ठीक, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम s टू द empty d ऑर्बिटल. ठीक है, s p3 हो गया, d हो गया. ठीक, अभी इन तीनों में, पांचों में क्या होगा, मिक्सिंग होगा. दैट मीन्स दे गेट हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइज्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दे विल बी फॉर्मिंग 1s 3p okay and 1d, 1s 3p and 1d hybrid orbitals. तो इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. दैट मीन्स हाउ मेनी, sp3d, हाउ मेनी, 5 sp3, क्योंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 5. 5 sp3 hybrid orbitals, and these sp3 hybrid orbitals will be occupying where, the corners of a, yes, triangular bipyramidal. ठीक है, 5 जो है साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का जो है 5 साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे. ठीक, तो दैट मीन्स द स्ट्रक्चर विल बी ऐसे होगा 1 2 3 4 5. यहाँ पे लेकिन D के लिए स्ट्रक्चर नहीं बनाते, सिंपली यू हैव टू ड्रॉ द लाइन डायग्राम. ठीक है, बाय लाइन ओनली यू हैव टू शो इट. तो ये हो गया 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे विल बी ऑक्यूपाइंग द 5 कॉर्नर्स. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द, ये तो वो फॉस्फोरस के बारे में ओनली. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5. दैट मीन्स Cl कैसे बॉन्ड ओवरलैप किया विथ दिस 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ. तो PCl5 में क्या हो रहा है, Cl अगेन फ्लोरीन के केस में क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ में भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ओवरलैप. यस, गोइंग टू ओवरलैप. हाउ दे आर गोइंग टू ओवरलैप, axially. Okay, and axially, and 3 lies at an angle 120 degree to each other, and two of the chlorine atoms, they lie 90 degree to the equatorial. This plane is called the equatorial plane, and these two are the axial pairs. Okay, and they are more longer than compared to the equatorial. The reason is that because of the repulsion of this bond pair with the bond pair of the axial axis, they get repelled. तो repulsion का कारण क्या हुआ, इसका bond length जो है बढ़ गया. ठीक है, this is the PCl5 structure. describe करना है, then you have to write, what you have to write, the, ये तो हो गया 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, and this 5 sp3 each sp3d hybrid orbital of what, or hybrid orbital of what, phosphorus is going to overlap. कैसे overlap करेंगे, axially, ये वर्ड डालना है, axially, and forms how many, 5 sp3d and p sigma bond, and they will be occupying the 5 corners of a regular triangular bipyramidal. They will be occupying the 5 corners of a triangular bipyramidal. तो ऐसे आपको लिखना है. 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें से 3 जो है, 3 will be forming, 3 PCl will be forming equatorial planes. Okay, they lie in the same plane with an angle 120 degree, and 2 PCl bond will be above and below the plane. That means they are at an angle 90 degree. Okay, this is about the PCl5 type of hybridization, sp3d. Okay, now I am going to explain the next, sp3d2. Okay. तो अभी यहाँ पे sp3d2 एग्जाम्पल, let me take the example, write the example. sp3d2 meaning, what do you mean by that? एक s orbital, 3p orbital and 2d orbital of the given subshell intermix to form how many,
6sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मिक्स होने के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड। एंड 6 है तो सेम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या था? octahedral. That means they will be occupying the 6 corners of a octahedron. Okay, now we will see the example, that is the first one, SF6. Okay, let's see this SF6। अभी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप कैलकुलेशन आप सीख चुके हैं कि कैसे निकालेंगे। तो इस कैलकुलेशन में आपको आंसर जो है कितना आएगा? यस स्टूडेंट्स, 6 आएगा, वैल्यू 6 आएगा। वैल्यू 6 आया मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। ओके, नाउ विल सी हाउ टू डिस्क्राइब इट। सबसे पहले सल्फर, इट्स एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p6 3s2 3p4। ओके, 3p4 हो गया। अभी दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन इसके हम लिखते हैं फॉर ओनली फॉर s एंड p। p में क्या हो गया? पहले केस में 3 था, अभी क्या था? 4 हो गया। ठीक है, here also same, the d orbital is empty, d orbital is present but it is empty। so now what happens, क्योंकि d2 है उस केस में हमें एक ही d orbital चाहिए, इस केस में we need the 2 orbital and we have 2 paired electrons also। s में भी paired electron है, p में भी, that means these 2 electron will be jumping to the empty d orbital। अभी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर दिया, d orbital में आ गया, 3s 3p and 3d, and from here also the electron from the paired, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू द डी ऑर्बिटल। तो यहाँ आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक s 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स दे गेट इंटरमिक्स। दैट मीन्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन दे विल बी फॉर्मिंग 1s 3p and 2d। दैट मीन्स हाउ मेनी? 6sp3d2 hybrid orbital will be formed and they will be occupying the 6 corners of a octahedron. Okay, this is about the sulfur. Okay, now the formation of SF6 we have to describe। फ्लोरीन कैसे उसके साथ ओवरलैप किया और कैसे बॉन्ड बनाया? तो फ्लोरीन अगेन सेम, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम ही है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो p सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन unpaired है and that is going to overlap with the sp3d2 hybrid orbital of sulfur। that means first of all we'll make the sulfur है और यहाँ पे लाइन डायग्राम बस है। ओके, फ्लोरीन 8 कॉर्नर्स बना देंगे हम। ठीक, कॉर्नर्स बना दिया, एक तो स्क्वायर बनाएंगे। 5 था तो रिमेंबर इफ 5 था तो हम ट्रायंगल बनाते थे, जो भी एटम्स था 5 था तो याद रखने का तरीका यही है, ट्रायंगल बनाएंगे एंड 1 अबव एंड 1 बिलो बना रहे थे। अभी 6 हुआ तो 6 का ट्रायंगल की जगह हम क्या करेंगे? स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ओके, 6 के लिए स्क्वायर, देन सेम अबव एंड बिलो। अगर 7 हो गया तो सेम यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 साइड के बाद क्या होगा? 5 साइड। पहले 5 के केस में 3 साइडेड फिगर था, ट्रायंगल था। 6 के केस में व्हेन 6 वाज द सराउंडिंग एटम तो 4 था बीच वाला, ठीक है, स्क्वायर था। अभी 7 हो गया तो हम क्या बनाएंगे? पेंटागोनल बना देंगे, बस 5 बनाएंगे एंड 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन होगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में भी सेम ही है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या था? 6 था, दैट मीन्स 6 दे विल बी ऑक्यूपाइंग द दिस फ्लोरीन जो है, इनके फ्लोरीन के जो p ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी ऑक्यूपाइंग जो 4 जो है स्क्वायर 4 s और p के बीच में जो ओवरलैप हुआ है, s और f के बीच में जो ओवरलैप हुआ है, तो जो 4 है दे विल बी फॉर्मिंग अ स्क्वायर स्ट्रक्चर एंड 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन। ऑल आर 90 डिग्री, सभी जो है 90 डिग्री टू ईच अदर होगा। ठीक है, ठीक, तो दिस इज अबाउट द स्क्वायर, दिस इज अबाउट द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर SF6। तो SF6 में क्या हुआ? 6sp3d2 डैश, यस, f का क्या था? p ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड 6sp3d2 डैश p सिग्मा बॉन्ड के बीच में ओवरलैप हुआ और ये वाला स्ट्रक्चर बना। ठीक है, यहाँ में ओवरलैपिंग किसके बीच में हुआ? m हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ हुआ।
फ्लोरीन का जो हाफ फील्ड एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल था उसके साथ ओवरलैप करके दिस स्ट्रक्चर वाज फॉर्म्ड. Okay, this is about sp3d2. Now we will see the last type of hybridization, that is sp3d3 hybridization. Okay, here one s orbital of s subshell, 3 p orbital of the p subshell and 3 d orbital of the d subshells get intermixed and forms how many are there? 7 sp3 d3 hybrid orbitals. एंड सिंस द शेप क्या था मैंने बताया था 7 है तो क्या होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा. ठीक है, तो दे विल बी ऑक्यूपाइंग, दैट मीन्स दिस 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी ऑक्यूपाइंग द 7 कॉर्नर्स ऑफ अ पेंटागोनल बाई पिरामिडल. ओके, नाउ एग्जाम्पल IF7, ये है एग्जाम्पल. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल I, इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर तो आपको याद नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो जिनको याद नहीं है तो आपको तो फर्स्ट तो पता है कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है. इट बिलोंग्स टू आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या हैलोजन ग्रुप्स को बिलोंग करता है. तो आपको ग्रुप का नाम याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अभी आप देख लेंगे कि फ्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना पता है. हाउ टू राइट फ्लोरीन का जो है 1s2 2s2 2p5 है, दैट मीन्स बैलेंस क्या है 2s2 2p5. ओके, 2s2 2p5 है, तो किस पीरियड को बिलोंग करता है 2 है, दैट मीन्स बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड है. ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है तो क्लोरीन क्या होगा थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है. ये फोर्थ, ये होगा फिफ्थ. तो फिफ्थ पीरियड है मीन्स कन्फिग्रेशन क्या होगा आउटरमोस्ट. हमें तो आउटरमोस्ट चाहिए, इनर से तो कुछ लेना देना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में. तो ये क्या होगा 5s2 5p6. तो आप क्या है ईजिली आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो डायरेक्टली यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है यहाँ पे लिख देंगे 1s2, ओनली यू राइट द आउटरमोस्ट 5s2 5p5 हो गया. तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही ऑर्बिटल में बना रहे. ठीक, 1 2 3 4 5 हो गया. ठीक, अभी यहाँ पे जो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है. ठीक, यहाँ में 5d 0 है, ये है 5p है, तो ये 5s है. ठीक, ना एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन. एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में हमें क्या चाहिए, वी नीड किसके साथ हाइब्रिडाइज हो रहे हैं 3d ऑर्बिटल के साथ. दैट मीन्स हियर हमारे पास कितना जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो दिस 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी जंपिंग टू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल. दैट मीन्स जंप करके यहाँ पे जो है इट फॉर्म्स 3 हो गया. तो यहाँ पे जो है s 3p and 3d orbitals. That means they get hybridized and forms how many 7 sp3d3 hybrid orbitals. And these sp3d3 hybrid orbital they will be occupying the 7 corners of a yes pentagonal bipyramidal. ठीक, अब ये ओवरलैप सेम फ्लोरीन के साथ ओवरलैप हो रहा है. दैट मीन्स जो आयोडीन जो फॉर्म हुआ है दे विल बी क्या होगा पेंटागोनल. पेंटागोन बनाएंगे सबसे पहले, हो गया पेंटागोनल स्ट्रक्चर. ठीक, 5 हो गया. दैट मीन्स 5 फ्लोरीन जो है दे विल बी ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन, ओवरलैप एक्सियली. ठीक, और 1 अबव एंड 1 बिलो. ये भी लेंथियर बनाना है आपको क्योंकि बिकॉज ऑफ रिपल्शन. दिस इज द इक्वेटोरियल एंड दिस इज द axial axis, and axial is lengthier because of the repulsion. Here the angle in the equatorial plane is 72 degree. तो ये हुआ formation of IF7. ओके, तो यहाँ में क्या हुआ 7 sp3d3 hybrid orbital है, each overlap with p orbital of fluorine. किसके साथ overlap किया, half filled p orbital of chlorine and forms 7 sp3d3 dash p sigma bond, and this will be occupying the 7 corners of a pentagonal bipyramidal and the angle is 72 degree. Okay students, this is about the sp3d3 hybridization. Okay, in the next class we will see the dipole moment, that means the way to how to measure the
पोलैरिटी। ओके, सो आई थिंक आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। सो लेट्स सी द असाइनमेंट।